صدر مملکت آصف علی زرداری کا گجرانوالہ کنٹونمنٹ کا دورہ۔ وزیر داخلہ بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ گجرانوالہ کنٹونمنٹ آمد پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر نے مارکہ حق میں مسلح افواج کی مثالی پیشہ ورانہ صلاحیت کو سراہا۔ صدر زرداری نے بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مسلح افواج کے عزم اور غیر متزلزل حوصلے کی تعریف کی۔ کور کمانڈر گجرانوالہ اور منگلا بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ISPR وزیراعظم شہباز شریف کی صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے جوتی عمرہ میں اہم ملاقات۔ مریم نواز بھی موجود۔ شہباز شریف نے اہم سیاسی اور خارجی امور پر پارٹی صدر کو بریفنگ دی۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی اور ملکی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں قومی یکجہتی کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی صورتحال پر غور۔ جس طرح افواج پاکستان اور پوری قوم نے یہ جنگ لڑی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی ہے۔ ہم نے بہترین حکمت عملی کے تحت مقابلہ کیا۔ نواز شریف کی گفتگو۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی الزام لگا کر بھاگ گیا۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے بھارت تیار نہیں۔ چند گھنٹوں میں جوانوں نے وہ تاریخ رقم کی جو قیامت تک دوست اور دشمن پڑھتے رہیں گے۔ دشمن کو شکست دے کر ملک کا جھنڈا بلند کیا۔ دنیا اب اس جھنڈے کو احترام سے دیکھ رہی ہے۔ شہباز شریف نے ملکی معاشی صورتحال سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ پاکستان کی معیشت بہترین سمت پر گامزن ہے۔ بھارت کی سخت مخالفت اور کوششوں کے باوجود IMF نے پاکستان کو $1 ارب قرض کی قسط جاری کی۔ حکومت کی آئندہ بجٹ پر IMF سے مشاورت جاری ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے اہداف کا باہمی مشاورت سے تعاون کیا جائے گا۔ شہباز شریف کی گفتگو۔ اللہ کا شکر ہے ہر میدان میں پاکستان کو ترقی مل رہی ہے۔ عوام کو مزید ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں۔ بہادر مسلح افواج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم سے وطن کا دفاع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان میں سرخرو کیا۔ قومی سلامتی کے لیے ہر قسم کی سیاسی تقسیم بھلا کر متحد ہونا خوش آئند ہے۔ پارلیمنٹ نے پاک بھارت جنگ میں مثبت اور توانا کردار ادا کیا۔ عوام کے نمائندوں نے عوام کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو۔ نواز شریف کا پاکستانی میڈیا کو بھی خراج تحسین کہا۔ سچ پر مبنی بیانیہ دنیا کے سامنے رکھا اور دشمن کے جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ عرفان صدیقی نے نواز شریف کو پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ بھارت اب ہماری مغربی سرحدوں پر دراندازی میں ملوث ہے۔ بھارت کو مشرقی سرحدوں پر شکست دی، مغربی محاذ پر مشرق سے بڑھ کر کامیابی ملے گی۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو سخت جواب دیں گے۔ 10 مئی کی رات ہماری تاریخ کا فیصلہ کن موڑ تھی۔ قومی اتحاد میں نظر آنے والی دراڑیں اتحاد میں بدل چکی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ کہا بھارت بڑے بڑے جہاز لایا، پاک افواج نے پتنگوں کی طرح کاٹ ڈالے۔ بھارت کے 10 جہاز نشانے پر تھے، ابھی ادھار باقی ہے۔ شہداء اور غازیوں کا نام تاریخ میں زندہ اور جاوید ہو گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے آپریشن بنیاد مرصوص کو پاکستانی مسلح افواج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ پاکستان طویل عرصے سے سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں بڑی کامیابی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پاکستان کی کامیابی سے پاکستانی مسلح افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ پاکستانی مسلح افواج کی جیت پر ان کے حق میں ریلیاں بھی نکالی گئی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ تنازع نے عوامی جذبات میں تبدیلی کی لہر پیدا کی۔ نیو یارک ٹائمز کا مضمون۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا الزام پاکستان پر عائد کر کے جارحیت کا آغاز کیا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی لڑاکا طیاروں کو زمین بوس کر کے سب کو حیران کیا۔ بڑی جنگ سے بچنے کے لیے پاکستان نے بھارتی سیز فائر کی پیشکش کو قبول کیا۔ بنیاد مرصوص کی کامیابی نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت پر اعتماد بحال کیا۔ برطانیہ کا پاک بھارت جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے مزید جنگ کسی بھی فریق کے حق میں نہیں ہے، لازم ہے پاک بھارت سیز فائر کو برقرار رکھا جائے۔ جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان اور عالمی شراکت داروں کے لیے میرا پیغام واضح ہے، دونوں ملکوں کے دفتر خارجہ سے کام کرنے پر فخر ہے۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है, बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। जिंदगी में सबसे ज्यादा पाक भारत जंग बंदी कराने पर सराहा गया। पाकिस्तान और भारत में किसी भी वक्त एटमी जंग छिड़ सकती थी। दोनों मुल्क सख्त नाराज थे। अदले का बदला हो रहा था। तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमेरिका की पाकिस्तान से ज्यादा तिजारत नहीं हुई। अमरीकी सदर ट्रंप के एक बार फिर भारत पर कड़ी तनकीद। कहा भारत ने दूसरों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बना दिया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। अब इंडिया 100% टैरिफ कम करने पर तैयार हो चुका है। ईरान डील करना चाहता है। रूस ने यूक्रेन से मुआहिदा ना किया तो रूसी मईशत को नई पाबंदियों से तबाह कर देंगे। बहादुर अफवाज ने साबित किया जंगें तादाद से नहीं सलाहियत से लड़ी जाती हैं। पाक फिजाइया के शाहीनों ने राफेल जहाजों को जमीन बोस करके धाक बिठा दी। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने फतेह मिसाइल दाग कर रोब जमाया। दुश्मन अमेरिका की मदद लेकर सीज फायर करवाने में कामयाब हुआ। हमारी बहरिया ने समंदरों से हमला करने के ख्वाब चकनाचूर किए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का GC यूनिवर्सिटी चनियोट कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा आने वाला दौर डिजिटल इनकलाब और AI का दौर है। हम नौजवानों को लैपटॉप्स देकर डिजिटल स्किल्स दे रहे हैं। नौजवान मुस्तकबिल का मुकाबला अंडे, कट्टों, मुर्गियों से नहीं कर सकते। हमारा विजन नौजवानों को टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। पाकिस्तान जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के किरदार का मौतरफ। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का ब्रितानी मीडिया को इंटरव्यू। अरुणाचल प्रदेश के नाम की तब्दीली पर पाकिस्तान का चीन की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मसाइल पर चीन की मुसलसल हिमायत का इयादा करता है। चीन ने मुतनाज़े अरुणाचल प्रदेश समेत मुतअद्दिद इलाकों के नामों में तब्दीली की थी। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश का नाम ज़ेंगनान रखा गया। चीन ने ज़ेंगनान में 27 मकामात के नामों में तब्दीली की। भारत ने पहलगाम वाक़े की मुखलिसाना पेशकश को हकारत से ठुकराया। हमारे शहरों पर हमला करके शहीद किया। हमने उस दुश्मन के 6 तैयारे गिराए जो जनूबी एशिया में खुद को थानेदार समझता था। 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने बताया भारत ने मिसाइल दागे हैं। सिपा सलार ने कहा दुश्मन को ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि याद करेगा। पाकिस्तान के तगड़े जवाब के बाद से दुश्मन को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की बरकती तकरीब से खिताब। कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया ने निहायत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। पूरे मामले में इसका किरदार शानदार रहा। जो जवाब हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को दिया वो यादगार है। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ कप्तान शाहिद अफरीदी की मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। बयान दिया। बानी PTI ने इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए 10 अरब रिश्वत की पेशकश की। जिस वक्त पेशकश की बात की गई तब अब्बास शरीफ इंतकाल कर गए थे और हम सिर्फ 2 भाई हयात थे। बानी PTI की तमाम गुफ्तगू का खुला इशारा मेरी तरफ ही है। टीवी पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। अदालत ने केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मज़ीद जिरा होगी। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दरखास्त की मुखालिफत में दलाइल दिए। मुलजिमा की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त 21 मई के लिए मुकर्रर है। रावलपिंडी में मुलजिमा के खिलाफ 11 और मुकदमात दर्ज हैं। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त में इस्तिस्ना बनता ही नहीं। जमानत कबल गिरफ्तारी के केस में मुलजिमा की जाती पेशी जरूरी है। इसराइल की रियासती दहशत गर्दी थम ना सकी। अहले गजा पार से होने की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 250 फलस्तीनी जान की बाज़ हार गए। शहदा की मजमूई तादाद 53,000 से बढ़ गई। गजा में गजाई किल्लत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी। ट्रंप इंतजामिया का गजा से 10 लाख फलस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर लिबिया मुंतकिल करने का मंसूबा। अमरीकी मीडिया का साबिक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दावा। अमरीका ने लिबिया की क़यादत के साथ तबादला ख्याल भी किया। फलस्तीनियों की आबादकारी के बदले ट्रंप इंतजामिया लिबिया के मुंजमिन अरबों डॉलर बहाल करेगी। अमरीका ने 1 दहाई कबल लिबिया के अरबों डॉलर को मुंजमिन किया था। इसराइल फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक होगी। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद UN जनरल असेंबली फ्रांस और सऊदी अरब के मुश्तरका सदारत में करेगी। गजा में इसराइली बर्बरियत पर फ्रांसीसी सदर का शदीद रद्द-ए-अमल। नेतन्याहू जो कुछ गजा में कर रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जल्द अमरीकी सदर और नेतन्याहू से इस हवाले से बात होगी। फ्रांस गजा में इमदाद पहुंचाने और जंगबंदी की कोशिशों में मसरूफ है। दुनिया गजा के बासियों को ग़िज़ा पहुंचाए। गजा में भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करना काबिले अफसोस है। फ्रांसीसी सदर का बयान। गजा में लोगों की बड़ी तादाद फाका कशी का शिकार है। खुराक की फ्राहमी की अशद जरूरत है। अगले माह मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। डोनाल्ड ट्रंप की मशरिक़ वुस्ता के दौरे के इख्तिताम पर गुफ्तगू। अमरीका की मईशत को धचका। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमरीका की रेटिंग कम कर दी। मूडीज की जानिब से अमरीकी रेटिंग AAA से कम करके AA1 कर दी गई। व्हाइट हाउस ने मूडीज के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। दोनों मुल्कों का 1,000 कैदियों का तबादला करने पर इत्तफाक। रूसी मुज़ाकराती टीम के सरबराह का कहना है यूक्रेन से बातचीत जारी रखना चाहते हैं।